Hello everyone. Today we are going to start with the next topic, that is the production of chronicle. Under that the first topic is from Turkish to Persian. As already I told you that ki Mughal court chronicles were written in Persian, but under the sultans of Delhi it flourished as the language of the court and of the literature writing also, along with Indian languages, especially Hindi language and its regional languages also. So, as the Mughals were Changezis, Turks by origin means उनका जो जन्म हुआ था, that is from that Turks by origin. So, Turkish was their mother language, and the first ruler Babur wrote poetry and its memoirs in this language. So it was Akbar who consciously set out to make Persian the leading language of the Mughal court, because he's all intellectuals and with whom he has contact and interaction, so that all from the Iranians and Central Asia they belong. So that is why he came across and he adopted the Persian as the court language. Now let's see the next topic, that is the making of manuscripts, how these manuscripts were made. All books in Mughal India were manuscripts. Manuscripts means handwritten, that they are, because they are handwritten, and the center of manuscript production was the Imperial Kitab Khana. And what was the center of manuscript? Where they were keeping all these manuscripts? In Kitab Khana. That is in English we are calling library, Hindi Pustakalay, and Kitab Khana is in Urdu. So although Kitab Khana can be translated as library, it was the scriptorium also. उसको scriptorium भी कहते थे. That is a place where the emperor's collections of manuscripts was kept and new manuscripts were also produced in this kitab khana only. So please underline it. It's very important. What are scriptorium and kitab khana? The creation of a manuscripts involved a number of people performing a variety of tasks. Like paper makers were different, who were needed to prepare the folios of the manuscripts, means the different the sheets of the paper. Then they needs also scribes or calligraphers, those who were writing in a very good handwriting, to copy the text. Hand gliders to illuminate the pages. Illuminated मतलब उन पेजेस में चमक लाने के लिए, उसको उस पर लाइट डालने के लिए. लाइट डालने का मतलब यहाँ पे उसको शाइन देने के लिए पेजेस को. एंड पेंटर्स टू इलिस्ट्रेट द सीन्स. पेंटर्स की भी ज़रूरत थी टू सीन पोर्ट्रेट करने के लिए फ्रॉम द टेक्स्ट. सो बुक बाइंडर्स आल्सो वर रिक्वायर्ड टू गैदर द इंडिविजुअल फोलियोज. मतलब एक एक फोलियो को इकट्ठा करके देन उनको बाइंड करना एंड सेट देम विद इन दी ऑर्नामेंटल कवर्स. ऑर्नामेंटल कवर्स मतलब इनके कवर्स कई बार ऑर्नामेंट्स के होते थे. ऑर्नामेंट्स का कलर मतलब उसको कवर के साथ सुसज्जित कर देना, मतलब उसको सजा देना. द फिनिश्ड मैन्युस्क्रिप्ट वाज सीन एज अ प्रीवियस ऑब्जेक्ट, अ वर्क ऑफ इंटेलेक्चुअल वेल्थ एंड ब्यूटी. और जो तैयार होकर मैन्युस्क्रिप्ट आता था, दैट वाज अ प्रीशियस ऑब्जेक्ट एंड इट्स अ वर्क ऑफ अ इंटेलेक्चुअल मतलब बहुत ही ज़्यादा कह लो कि वैल्यूएबल वेल्थ एंड ब्यूटी. इंटेलिजेंट पीपल हैव रिटन एंड उनकी ये वेल्थ एंड द ब्यूटी. इट एग्जाम्प्लीफाइड, और ज़्यादा एक्सप्लेन करती थी वो, एग्जाम्पल देती थी वो पावर ऑफ इट्स पैटर्न. पावर ऑफ इट्स पैटर्न मतलब जिसने इसको फाइनेंशियली सपोर्ट किया है. एंड द मुगल एम्परर, कौन था ये पैटर्न? द मुगल एम्परर. टू ब्रिंग सच ब्यूटी इन टू बींग्स. एंड हु वॉज बिहाइंड दीज ऑल मैन्युस्क्रिप्ट्स? द मुगल एम्परर्स, हु वर सपोर्टिंग फाइनेंशियली ऑल्सो and morally also. At the same time, some of the people involved in the actual production of the manuscript also got the recognition in the form of titles and awards. और कई बार इन्हीं manuscripts को प्रोड्यूस करने वालों को, जो ये लिखते थे, they were awarded with the titles and awards, and of these calligraphers and painters held a high social standing, while others such as paper makers of bookbinders have remained anonymous artisans only. सो जैसे उनका कहना है कि ये कैलीग्राफर्स और पेंटर जो थे, इनको भी सोसाइटी में बहुत हाई स्टेटस दिया जाता था, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती थी इनको. एंड एनोनिमस का मतलब होता है डिसेंट्रलाइज्ड इंटरनेशनल एक्टिविस्ट ग्रुप दैट इज़ वाइडली नोन फॉर इट्स वेरियस साइबर अटैक्स अगेंस्ट सेवरल गवर्नमेंट. सो calligraphy is the art of, at the same time some of the people involved in the actual production of the manuscript, they got recognition in the form of titles. उनको titles दे दिए जाते थे, awards दे दिए जाते थे, और उनके नाम से उनको जाना जाता था. और इन्हीं के साथ साथ और भी बहुत सारे लोग थे जो इस मैन्युस्क्रिप्ट राइटिंग में या फिर ये जो रिटर्न लाइफ के बारे में लिखते थे, जो इन एम्परर्स के,
दैट इज़ द टेक्स्ट ऑन द एम्परर्स लाइफ दैट सच एज जैसे कि पेपर मेकर्स और बुक बाइंडर्स, दे हैव रिमेन्ड एनोनिमस आर्टिसंस ओनली। इनको मतलब उतना ज़्यादा नहीं सोसाइटी में उतना ज़्यादा स्टेटस मिला जितना कि बाकियों को मिला है। कैलीग्राफी द आर्ट ऑफ राइटिंग वॉज कंसिडर्ड अ स्किल ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। कैलीग्राफी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई बिकॉज इट इज़ द आर्ट ऑफ राइटिंग, हैंड राइटिंग। इट वॉज प्रैक्टिस्ड यूजिंग डिफरेंट स्टाइल्स। अकबर्स फेवरेट वॉज नस्तलिक। नस्तलिक है एक फ्लूइड स्टाइल। फ्लूइड का मतलब होता है जिसका कोई शेप नहीं होती। फ्लूइड स्टाइल विद लॉन्ग हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स, वो ऐसे स्टाइल में लिखी जाती थी, फ्री स्टाइल में, जिसको हम फ्री स्टाइल भी कह सकते हैं, ठीक है, फ्री स्टाइल में, जो कि लॉन्ग हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक के साथ लिखी जाती थी, जैसे आप ये साइड में देख भी रहे हो कैलीग्राफी। एंड इट वॉज रिटन यूजिंग अ पीस ऑफ ट्रिम्ड रीड। आपने कलम देखी होगी जो गांव में वो लगते हैं बाहर ओपन जगह के ऊपर, ओपन खेतों के बीच में ये लगती हैं प्लांट, और जब वो सूख जाते हैं तो उसकी जो सेंटर का पार्ट होता है उसको काट कर उसके आगे के पार्ट को शेप दी जाती है और उसको पेन की तरह शेप दी जाती है, आगे पेन की निब की तरह, ठीक है। सो ये ट्रिम्ड रेड जो रीड होती थी विद अ टिप ऑफ 5 to 10 मिलीमीटर्स कॉल्ड कलम, डिप्ड इन द कार्बनिंग, जिसको हम कहते थे स्याही, एंड निब ऑफ द कलम इज़ यूजुअली स्प्लिट इन द मिडल से उसको स्प्लिट किया जाता था ताकि वो एब्जर्व कर सके इंक को। नाउ इन टेक्स्ट में, इन मैन्यूस्क्रिप्ट्स में क्या इंपॉर्टेंस थी? पेंटिंग इमेजेस की, पेंटेड इमेजेस की। पेंटेड इमेजेस आपको पता है एक तरह से आज भी अगर आप देखो, अगर बुक में सिर्फ रिटन पार्टी हो तो आपको उतनी अट्रैक्टिव नहीं लगती, इतना इंटरेस्ट नहीं आता उस बुक में, जितना कि उसमें जब इमेजेस, कलरफुल इमेजेस हो तो आपको उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट आता है और उसको पढ़ने में मज़ा भी आता है। सो एज वी रेड इन द प्रीवियस सेक्शन, पेंटर्स टू वर इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ द मुगल मैन्यूस्क्रिप्ट्स। लास्ट चैप्टर में भी हम पेंटर्स के बारे में पढ़ चुके हैं। सो क्रॉनिकल्स नरेटेड द इवेंट्स ऑफ मुगल एम्परर्स रेन कंटेन्ड अलॉन्ग द रिटन टेक्स्ट। और जो ये मुगल से एम्परर्स के क्रॉनिकल्स लिखे गए हैं उसमें अलॉन्ग विद द रिटन टेक्स्ट इमेजेस दैट डिस्क्राइब एन इवेंट इन विजुअल फॉर्म। उन इमेजेस को देखकर हम विजुअल फॉर्म में, आपको भी पता बेटे रिटन पार्ट से ज़्यादा जब हम विजुअल से किसी चीज़ को देखकर उसको हम ज़्यादा अच्छी तरह से समझ सकते हैं। सो व्हेन सीन्स और थीम्स इन द बुक वर टू बी गिवन विजुअल एक्सप्रेशन, द स्क्राइब्स लेफ्ट ब्लैंक स्पेसेस ऑन नियर बाय पेजेस बिकॉज द पर्सन हु वॉज राइटिंग ही वॉज द कैलीग्राफिस्ट, ही वॉज नॉट एक्सपर्ट इन पेंटिंग, सो दैट इज वाइल राइटिंग ही वॉज लीविंग अ स्पेस फॉर द पेंटर्स टू portrait there the pictures executed separately by the artist, because these paintings were executed separately by the artist, were inserted to accompany what was described in words। जो भी words में describe किया जाता था उसको साइड में पिक्चर के रूप में एक्सप्रेस किया जाता था। and these paintings were miniatures and could therefore, miniatures means small pictures, and could therefore be passed around for viewing and mounting on the pages of the manuscripts। और यही जो है वो देखने के लिए मिलती थी मैन्यूस्क्रिप्ट के पेजेस पर। पेंटिंग सर्व नॉट ओनली टू एनहांस द ब्यूटी ऑफ द बुक, पेंटिंग सिर्फ बुक की ब्यूटी को ही नहीं बढ़ाती थी, बट वर बिलीव टू पोजेस स्पेशल पावर टू कम्युनिकेट आइडियाज़ अबाउट द किंगडम। लेकिन उसमें एक स्पेशल पावर थी जो उस किंगडम के आइडियाज़ को, उस समय क्या हो रहा था उसको बेटर कम्युनिकेट करती थी लोगों तक। एंड द पावर ऑफ द किंग इन द वे दैट रिटन मीडियम कुड नॉट। जो रिटन पार्ट में पढ़कर हम उतना नहीं लोगों तक ईजिली कन्वे कर सकते थे, उसको पिक्चर के थ्रू बड़े आसानी के साथ कम्युनिकेट कर दिया जाता था। एंड हिस्टोरियन अबुल फजल डिस्क्राइब दैट पेंटिंग, उसने डिस्क्राइब किया पेंटिंग के बारे में कि पेंटिंग जो है वो एक मैजिकल आर्ट है। एंड इन हिज व्यू इट हैड द पावर टू मेक इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स टू लुक एज इफ़ दे हैव पोजेस्ड लाइफ। उनका ये कहना था कि इन पिक्चर्स को देखकर ऐसे लगता है जैसे किसी मरी हुई चीज़ में या मृतक में जान आ जाती है, लाइफ आ जाती है उसमें। सो उस तरह की लगती है ये। फाइन। सो नाउ लेट्स सी टू द नेक्स्ट पेज। द प्रोडक्शन ऑफ पेंटिंग्स पोर्ट्रेइंग द एम्परर आल्सो। जो ये पेंटिंग्स हैं उसमें एम्परर को भी पोर्ट्रे किया जाता था, उनको भी पेंट किया जाता था, उनको भी दिखाया जाता था। हिज कोर्ट, द पीपल हु वर पार्ट ऑफ हिज कोर्ट वॉज अ सोर्स ऑफ कॉन्स्टेंट टेंशन बिटवीन रूलर्स एंड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द मुस्लिम ऑर्थोडॉक्सी। जब ये पेंटिंग्स बनाई जाती थी इन मैन्यूस्क्रिप्ट्स के अंदर, ये भी एक विषय बन जाता था टेंशन का बिटवीन द रूलर एंड द रिप्रेजेंटेटिव। कौन से रिप्रेजेंटेटिव? मुस्लिम ऑर्थोडॉक्सी। मुस्लिम ऑर्थोडॉक्सी हैं उलेमास। उलेमास होते थे गुरुस, जिनको बहुत ज़्यादा नॉलेज होती थी मुस्लिम लॉज की, रिलीजियस लॉज की। फाइन। एंड दिस पीपल वर वेरी ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स मतलब कट्टेड, दे डिड नॉट वांट टू चेंज देयर
रिलीजियस लॉस. सो द लेटर यहीं पर इनको मुस्लिम ऑर्थोडॉक्सी उलेमास को बोला गया है. द लेटर डिड नॉट फेल टू इन्वोक द इस्लामिक प्रोहिबिशन. वो कभी भी फेल नहीं होते थे. इन्वोक मतलब रिस्ट्रिक्शंस लगाने पर. इस्लामिक प्रोहिबिशन ऑफ द पोर्ट्रेयल ऑफ ह्यूमन बींग्स एंश्राइंड इन द कुरान एज वेल एज द हादीस. फाइन. वो कभी भी जो कुरान में जिन लोगों का मेंशन था, जिन पीपल का मेंशन था, उनकी कभी भी कोई भी पिक्चर वो किसी और मैन्युस्क्रिप्ट में नहीं बनने देते थे, कभी भी पेंट नहीं होने देते थे. विच डिस्क्राइब एन इंसिडेंट फ्रॉम द लाइफ ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद. मतलब कोई भी ऐसी पिक्चर और कोई भी ऐसा कैरेक्टर कुरान का जिसका रिलेशन प्रॉफिट मोहम्मद के साथ था, उसका मेंशन कहीं भी अगर पेंटिंग के फॉर्म में अगर किया जाता था उन मैन्युस्क्रिप्ट्स में, तो वो इस चीज़ को अलाउ नहीं करते थे और उसके अगेंस्ट खड़े हो जाते. एंड हेयर द प्रॉफिट इज साइटेड एज हैविंग फॉरबिडन द डिपिक्शन ऑफ लिविंग बींग्स इन अ naturalistic manner. It would suggest that the artist was seeking to appropriate the power of the creation. So उनका ये कहना था कि जो प्रॉफिट है जिनको पैगंबर कहा जाता है, भगवान है, वो सारे इस नेचर को क्रिएट करते हैं. तो हाउ वन पेंटर कैन क्रिएट पिक्चर ऑफ दैट पर्सन. उनकी ये फीलिंग थी कि किसी के पास इतनी पावर नहीं है कि इस सारी प्रकृति को बनाने वाले की पिक्चर को वो बनाए. सो दिस वॉज अ फंक्शन दैट वॉज बिलीव टू बिलोंग एक्सक्लूसिवली टू गॉड. उनका कहना था कि ये चीज़ तो सिर्फ एक भगवान ही बना सकते हैं जिनके पास ये सारी पावर है. सो येट इंटरप्रिटेशंस मीन्स एक्सप्लेनेशन ऑफ द शरिया चेंज्ड विद. शरिया मतलब मुस्लिम रिलीजियस लॉज की एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस शरिया मीन्स मुस्लिम रिलीजियस लॉज चेंज विद द टाइम. जैसे जैसे टाइम बीतता गया, ये जो और नैरो माइंडेडनेस और जो नैरो इनके रिलीजियस लॉज थे वो भी टाइम टू टाइम चेंज होते रहे. एंड द बॉडी ऑफ इस्लामिक ट्रेडिशन वाज इंटरप्रेटेड इन डिफरेंट वेज बाय वेरियस सोशल ग्रुप्स. अब ये जो इस्लामिक परंपरा है, इस्लामिक ट्रेडिशंस थे, वो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स ने डिफरेंट वे में एक्सप्लेन किए हैं. फ्रीक्वेंटली ईच ग्रुप पुट फॉरवर्ड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रेडिशन दैट वुड बेस्ट सूट देयर पॉलिटिकल नीड्स. हर किसी ने उसको, इन सारे मुस्लिम ट्रेडिशंस को अपने पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए या अपने पॉलिटिकल नीड्स के अकॉर्डिंगली उन्होंने उसको समझा है. एंड मुस्लिम रूलर्स इन मेनी एशियन रीजन ड्यूरिंग सेंचुरीज ऑफ एम्पायर bulking regularly commissioned artists to paint their portraits and scenes of the life in their kingdoms. And every Muslim ruler, they wanted that कि their artists should portray the scenes of their life and also life in their kingdom also. The Safavid kings of Iran, for example, patronized the finest artists. Patronize means उन्होंने financially और morally support किया है ऐसे painters को जिन्होंने इस तरह के portraits बनाए, who were trained in वर्कशॉप सेटअप एट अ कोर्ट, जो कि कोर्ट में वर्कशॉप्स लगाया करते थे और वो पोर्ट्रेट बनाया करते थे. द नेम्स ऑफ द पेंटर्स सच एज दैट ऑफ बिजाद कॉन्ट्रीब्यूटेड टू स्प्रेडिंग द कल्चरल फेम ऑफ द सैफेविड कोर्ट फार एंड वाइड. क्योंकि उसने अपनी पेंटिंग के थ्रू सैफेविड जो कोर्ट था उसकी जो हम कह लें कि प्रेस्टीज, उसको बहुत दूर दूर तक उसको लोगों तक पहुंचाया अपनी पेंटिंग्स के थ्रू. एन आर्टिस्ट फ्रॉम ईरान आल्सो मेड देयर वे टू मुगल इंडिया. ईरान से भी बहुत सारे आर्टिस्ट थे जो हमारे मुग़ल इंडिया में आए थे मुगल्स के टाइम पर. एंड सम वर ब्रॉड टू द मुग़ल कोर्ट, और कई मुग़ल कोर्ट में इन्होंने काम भी किया, एज इन द केस ऑफ मीर सैयद अली एंड अब्दुल समद हु वर मेड टू अकम्पनी एम्परर हुमायूं टू दिल्ली. जो कि मुग़ल एम्परर हुमायूं के साथ दिल्ली तक गए वो. एंड अदर्स माइग्रेटेड इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ टू विन पैटर्नेज एंड प्रेस्टीज. और बहुत सारे ऐसे और भी पेंटर्स हैं जिन्होंने पोर्ट्रेट बनाए हैं ऐसे मुग़ल एम्परर्स के और उनकी लाइफ के, उनके कोर्ट के, उनके किंगडम्स के, उनके एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड. एंड इवन उन्होंने बहुत सारा फाइनेंशियल सपोर्ट, फाइनेंशियल दैट अवार्ड्स एंड इवन द टाइटल्स दे वॉन फ्रॉम द मुग़ल एम्परर्स. अ कन्फ्लिक्ट बिटवीन द एम्परर एंड द spokesmen of Orthodox Muslim opinion on the question of visual representation of living beings was a source of tension at the Mughal court. लेकिन ये ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम जो कि उलेमास और जो ये रूलर्स थे, इनके बीच में हमेशा टेंशन का एक सब्जेक्ट रहा है कि विजुअल रिप्रेजेंटेशन मतलब इमेजेस नहीं बनानी चाहिए लिविंग बींग्स की इसमें, क्योंकि वो उनके अकॉर्डिंगली था कि वो हम उनके रिलीजियस लॉज के अगेंस्ट जाता है.
सो अकबर्स कोर्ट हिस्टोरियन अबुल फजल साइट्स द एम्परर एज सेइंग कि देयर आर मैनी दैट हेट पेंटिंग बट सच मैन आई डिसलाइक। उन्होंने कहा कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं। उन्होंने किसके ऊपर यहाँ पे व्यंग कसा है, हम कह सकते हैं कि किसको क्रिटिसाइज यहाँ पे वो कर रहे हैं, ये नैरो माइंडेड उलेमास को। उनका कहना है कि देयर आर मैनी दैट हेट पेंटिंग बट सच मैन आई डिसलाइक। सो इट अपीयर्स टू मी दैट एन आर्टिस्ट हैज़ अ यूनिक वे ऑफ रिकग्नाइजिंग गॉड। उनका ये कहना था कि जो एक आर्टिस्ट होता है ना, उसके पास एक डिफरेंट सा ही वे होता है जिससे कि वो भगवान को पहचान लेते हैं। व्हेन ही मस्ट कम टू फील दैट कि ही कैन नॉट बेस्टो लाइफ ऑन हिज वर्क, कि उसके पास एक यूनिक वे है कि वो आर्टिस्ट ही नहीं कहलाने के लायक, जो कि उनका ये कहना है कि जो आर्टिस्ट होता है उसके पास ये पावर होती है कि इवन एक मुर्दा इंसान जो है तस्वीर में उसको वो ज़िंदा दिखा सकते हैं। मतलब तस्वीर में इंसान को वो ज़िंदा दिखा देते हैं कि इंसान की मरे हुए की कि अगर वो पोर्ट्रेट बना दे तो वो भी ऐसे लगता है जैसे अभी तस्वीर से निकल कर बाहर वो बोलने लग जाएगा। तो उनका कहना है कि वो उसके पास एक ऐसा यूनिक वे होता है कि जिससे वो भगवान को रिकग्नाइज, मतलब भगवान को वो पूछते हैं एक तरह से ऐसी तस्वीरें बनाकर कि जो वो मरे हुए को भी जान डाल देते हैं। बेस्टो लाइफ ऑन द अर्थ मीन्स दैट प्रदान करना, फाइन, लाइफ, ठीक है। सो लाइफ देना, टू ऑनर लाइफ टू द person. So now the next topic is the Akbarnama and the Bashanama. So among the important illustrated Mughal chronicles of Akbarnama as you know that it's the chronicle of Akbar and Bashanama of Humayun, ठीक है। सो द क्रॉनिकल ऑफ अ किंग, बादशाहनामा का वैसे मीनिंग जो होता है वो होता है क्रॉनिकल ऑफ अ किंग। बादशाह मतलब किंग एंड नामा मतलब क्रॉनिकल आर द मोस्ट वेल नोन। अकबरनामा एंड बादशाहनामा ईच मैन्यूस्क्रिप्ट कंटेन एन एवरेज ऑफ 150 फुल और डबल पेज पेंटिंग्स ऑफ बैटल। उसमें बहुत सारी पेंटिंग्स हैं, 150 वो कहते हैं, हर उसमें वॉल्यूम में पेंटिंग्स भी हैं, उनकी बैटल्स की पेंटिंग्स हैं, उनकी हंटिंग की पेंटिंग्स हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कोर्ट सीन्स एवरीथिंग हैव बीन पेंटेड इन दोज manuscripts. The author of and those chronicles, we can say that the author of the Akbarnama Abul Fazl grew up to the Mughal capital of Agra. कि वो तो उनका बचपन, उनका सब कुछ जो है अबुल फजल का वो वहीं पर मुग़ल कैपिटल में ही उनका डेवलपमेंट हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा उन्होंने उसमें इज़्ज़त कमाई है। एंड ही वॉज वाइडली रेड इन अरेबिक, और सबसे ज़्यादा उन्होंने किस लैंग्वेज में लिखा है? अरेबिक, पर्शियन, ग्रीक फिलोसफी एंड सूफिज़म ऑल्सो। मोर ओवर ही वॉज अ फोर्सफुल डिबेटर ऑल्सो। अगर बेटे कहीं क्वेश्चन आ जाता है आपको 2 मार्क्स में कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अबुल फजल, सो हेयर आर द लाइन्स फॉर इट, फाइन। सो ही वॉज अ फोर्सफुल डिबेटर ऑल्सो, कि बहुत ज़्यादा डिबेट में भी वो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट थे। एंड इंडिपेंडेंट थिंकर हु कंसिस्टेंटली अपोज द व्यूज़ ऑफ द कंजर्वेटिव उलेमास, और वो एक ऐसे पर्सन थे जो उलेमास के खिलाफ खड़े हो जाते थे उनके साथ डिबेट करने के लिए। अगर वो किसी भी चीज़ के अगेंस्ट, जैसे कि वो कह रहे थे कि पेंटिंग्स नहीं बजानी चाहिए किसी भी मैन्यूस्क्रिप्ट क्रॉनिकल में, सो उसके भी खिलाफ वो इंडिपेंडेंटली अकेले खड़े हुए थे। दीज क्वालिटीज़ इम्प्रेस्ड अकबर हु फाउंड अबुल फजल आइडियली सूटेड एज एन एडवाइज़र एज एन स्पोक पर्सन फॉर हिज पॉलिसीज़, इसीलिए वो उन्होंने उसको अपना एडवाइज़र बना रखा हुआ था। एंड वन मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द एम्परर वॉज टू फ्री द स्टेट फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ उलेमास, क्योंकि ये जो ऑर्थोडॉक्स उलेमास होते थे ना, ये राजा के ऊपर भी कंट्रोल करना चाहते थे, और उनकी कोई भी पॉलिसी अगर रिलीजन के ज़रा सा भी थोड़ा सा भी फ्लेक्सिबिलिटी से बाहर चली जाती थी तो ये उसके खिलाफ हो जाते थे। इन हिज रोल एज अ कोर्ट हिस्टोरियन अबुल फजल बोथ शेप्ड आल्सो आर्टिकुलेटेड। शेप्ड मतलब उसने बहुत ज़्यादा शेप दी है मुग़ल के कोर्ट को प्रॉपरली, एंड आर्टिकुलेटेड मतलब जब दो चीज़ों को एक जॉइंट लगाकर जोड़ा जाता है, मतलब उसने हमेशा ऑर्थोडॉक्स और राजा की मतलब जो एम्परर की पॉलिसीज़ थी, इन दोनों को जोड़कर उनमें दोनों में सामंजस्य बना के रखना, मतलब हारमोनी बनाकर रखी दोनों के बीच में, इन उलेमास के बीच में और मुग़ल एम्परर के बीच में। नहीं तो हमेशा उनके बीच में ये टेंशन ही रहती थी। एंड बिगिनिंग इन 1589 अबुल फजल वर्कड ऑन द अकबरनामा फॉर 13 ईयर्स। 13 ईयर्स तक उन्होंने अकबरनामा पे वर्क किया है, रिपीटेडली रिवाइजिंग द ड्राफ्ट, और जो भी ड्राफ्ट था उसको उन्होंने बहुत बार रिपीटली रिवाइज़ किया। एंड क्रॉनिकल इज़ बेस्ड ऑन अ रेंज ऑफ सोर्सेज इंक्लूडिंग, उसमें एक्चुअल रिकॉर्ड्स भी हैं इवेंट्स के, जिसको वक्त कहते हैं, जो टाइम टू टाइम वो देख रहे थे वो उसको साइड बाय साइड लिखी भी जा रहे थे। फिर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो उनको मिले उसमें से उन्होंने उनके टाइम की हिस्ट्री को लिखा है। और इवन द ऑरल टेस्टिमनीज़ ऑफ नॉलेजेबल पर्सनस, मतलब जो बहुत विद्वान लोग थे उन्होंने जो ऑरली गवाही दी कि हाँ ये चीज़ें जो हैं वो ऐसे ही उस समय में हुई थी, इन सारी चीज़ों को जोड़ते हुए। टेस्टिमनी का मतलब होता है गवाही, फाइन, गारंटी। ऑरली जिन्होंने
सपोर्ट किया इसको विद्वानों ने. सो अकबरनामा इज डिवाइडेड इनटू 3 बुक्स ऑफ विच द फर्स्ट 2 आर क्रॉनिकल्स. द थर्ड बुक इज आईने अकबरी. फाइन. So first volume contain the history of mankind from Adam to one celestial cycle of the Akbar's life. अकबर की 30 years की life उसमें दी गई है. Second volume closes in the 46 regional year. ठीक है. फर्स्ट में 30 years, सेकेंड में 41st year तक का उनकी सारी लाइफ की जर्नी उसमें दी गई है. कॉन्स्पिरेसी उसमें ये भी दिया गया कि कैसे उनके बेटे सलीम ने उनके साथ कॉन्स्पिरेसी की एंड वॉज मर्डर्ड बाय हिज एकम्प्लिस बीर सिंह बुंदेला, और कैसे वो उनको मर्डर भी किया गया था. सो अकबरनामा वॉज रिटन टू प्रोवाइड अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ अकबर्स रेन इन द ट्रेडिशनल डायक्रॉनिक. डायक्रॉनिक हेयर मीनिंग दैट कि किसी भी चीज़ को उसके टाइम पीरियड के अकॉर्डिंगली सीक्वेंस में लिखना. ठीक है. डायक्रॉनिक सेंस ऑफ रिकॉर्डिंग पॉलिटिकली सिग्निफिकेंट. उन्होंने मतलब उस वक्त में जो चीज़ें उनको लगी कि जो पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस सीक्वेंस में लिखने को कहते हैं डायक्रॉनिक. एज वेल एज इन द मोर नॉवल सेंस ऑफ गिविंग साइक्रोनिक पिक्चर ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ अकबर्स एम्पायर. सिंक्रोनिक मीन्स वी कैन से दैट जो उनको लगा कि इनका मेंशन करना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. उस टाइम की वो चीज़ें, वो इवेंट जिसका उनको लगा कि इनका मेंशन करना यहाँ बहुत ज़रूरी है. फाइन. सो डायक्रॉनिक एंड सिंक्रोनिक ये दोनों ही तरह के उन्होंने एस्पेक्ट्स को अकबर के एम्पायर के, चाहे वो उनके एम्पायर के जोग्राफिकल एरिया थे, चाहे उस समय की सोसाइटी, सोशल, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे कल्चर, विदाउट रेफरेंस टू क्रोनोलॉजी. कोई रेफरेंस उन्होंने उसमें सिंक्रोनिक में कोई सीक्वेंस नहीं देखा. जैसे डायक्रॉनिक में टाइम पीरियड के अकॉर्डिंगली सीक्वेंस में लिखा है, एंड जो सिंक्रोनिक है उसमें जो इंपॉर्टेंट लगा वो उसमें मेंशन करते गए विदाउट एनी सीक्वेंस. फाइन. सो अबुल फजल रोट in a language that was ornate and which attach importance to diction and rhythm. So diction means use of words or phrases in speech or writing. Use of words and phrases in uh, writing or speech. So Abul Fazl, he was ornate and which attach importance to diction and rhythm also, क्योंकि as text were often read aloud, क्योंकि उनको बहुत ज़ोर से पढ़कर ऊंचे ऊंचे पढ़कर सुनाना होता था, इसलिए हमेशा उनको फ्रेजेस फॉर्म में और रिदम के फॉर्म में पढ़ा जाता था. एंड दिस इंडो पर्शियन स्टाइल वॉज पैटर्नाइज्ड एट कोर्ट. इंडो पर्शियन स्टाइल मतलब उसमें इंडियन की हिंदी लैंग्वेज और पर्शियन दोनों स्टाइल को फाइनेंशियली सपोर्ट किया गया है. कोर्ट ने किसने पैटर्नाइज किया है, मतलब सपोर्ट किया है. एंड देयर वर अ लार्ज नंबर ऑफ राइटर्स हु वांटेड टू राइट जस्ट लाइक Abul Fazl, as he was very expert in writing chronicles. A pupil means शिष्य, student of Abul Fazl, Abdul Hamid Lahori, is known as the author of the Badshah-Nama. He is the author of Badshah-Nama, the biography of Emperor Shah Jahan. Emperor Shah Jahan, hearing of his talent, and he then commissioned him, मतलब appointed him to write a history of his period model on the अकबरनामा. बिल्कुल मॉडर्न अकबरनामा के मॉडल पर ही वो अपनी हिस्ट्री लिखवाना चाहते थे. एंड बादशाहनामा इज दिस ऑफिशियल हिस्ट्री इन 3 वॉल्यूम्स में. 3 वॉल्यूम्स को कहते हैं 3 दफ्तर्स ऑफ 10 लूनर ईयर्स ईच, और हर एक में 10 ईयर्स का मेंशन किया गया, 10 ईयर्स की पीरियड टाइम का इवेंट्स का मेंशन किया गया. लाहौरी रोड द फर्स्ट एंड सेकेंड दफ्तर कंप्राइजिंग द फर्स्ट 2 डेकेड्स ऑफ एम्परर्स रूल. अकबर शाहजहाँ के जहांगीर के दो जो 20 ईयर्स की जो लाइफ थी उसको तो उन्होंने 2 वॉल्यूम्स में लिख दिया, बट थर्ड वो नहीं लिख पाए बिकॉज ही वॉज वेरी ओल्ड, एंड ड्यू टू हिज ओल्ड एज ही वॉज नॉट एबल टू कंप्लीट द थर्ड. सो देन दैट थर्ड वन वॉज कंप्लीटेड बाय और क्रॉनिकल्ड बाय द हिस्टोरियन वारिस जी ने लिखी है इनका थर्ड वॉल्यूम बादशाहनामा का. इट मीन्स बादशाहनामा वॉज 2 वॉल्यूम्स आर रिटन बाय अब्दुल हामिद लाहौरी एंड थर्ड वॉज कंप्लीटेड बाय द हिस्टोरियन वारिस. So during the colonial period, when the Britishers were there, British administrators began to study Indian history and they create an archive. Archive means where these manuscripts are recorded and they are stored. Archives of knowledge about the subcontinent to help from better understand the people and the culture of the empire, because they wanted to store them and they wanted to compile and to preserve them, because they wanted to
understand better the people and the culture of their empire, that is the Indian people they sought to rule, because जिनके ऊपर उनको रूल करना था उनको अच्छी तरह से समझना चाहते थे वो इन आर्चाइव में जाकर इन सारे मैन्यूस्क्रिप्ट्स को पढ़कर और इन सारे क्रॉनिकल्स को पढ़ के। एंड द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो कि बनाई गई थी सर विलियम जोन्स ने 1784 में, अंडरटुक द एडिटिंग, प्रिंटिंग एंड ट्रांसलेशन ऑफ मैनी इंडियन मैन्यूस्क्रिप्ट्स। और ये काफ़ी सारी जो मैन्यूस्क्रिप्ट थे जैसे अकबरनामा, बादशाहनामा, बाबरनामा, इनको उन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट भी करवाया सो दैट दे कैन बेटर अंडरस्टैंड व्हाट वाज मेंशन इन दैट और व्हाट वाज रिटन इन दैट। Edited versions of Akbarnama and Badshahnama was first published by the Asiatic Society in 19th century, and in early 20th century Akbarnama was translated into English by Henry Beveridge after years of hard labor। बहुत सालों तक काम करने के बाद then he able to translate it into English। Only excerpt means small parts of the Badshahnama have been translated into English आज तक, और अभी तक उसका जो मेन पार्ट है, इंटरनल पार्ट जो है वो स्टिल वेटिंग फॉर ट्रांसलेशन। ओके बेटा, थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट डे।